Hello students, very good morning to all of you. Dear students, this time we are studying to the chapter simple tense, and in this chapter we have to read the parts of simple tense. The first is simple present, the second is simple past, the third is simple future tenses. At first, here we shall start simple present tense. When we divide it on the base of sentences, there are four types of sentence: assertive sentence, negative sentence, interrogative sentence, and interrogative negative sentence. Okay, students? Now, here are some descriptions, some expressions about simple tense. You see, simple tense describes something that is almost permanent. It describes something that is almost permanent or has been happening for some time and is still continuing. जहाँ पर भी परमानेंट फीचर्स शो होगा, जहाँ पर भी जो इंसिडेंट है वो कंटिन्यू हैपनिंग की तरफ शो होगा, there is simple tense, and the example is here like that. We live in Kolkata. He reads newspaper. She writes a letter. The children play in the field. The farmers cut the crops. So these all are the example for it. Now you see how I describe it here. You can understand it very easily. You see, the example is, I live in Delhi. I live in Delhi. You see, I live in Delhi. Listen, here you see, this is the example for simple present. I live in Delhi is a part of assertive sentence. When you talk about it negative sentence, its negative will be, I do not live in Delhi. I do not live in Delhi. And when you talk about its interrogative will be, do I live in Delhi? Do I live in Delhi? And now when you talk about interrogative negative sentence, you found that why do I not live in Delhi? Why do I not live in Delhi? तो इसके चार फीचर्स हो गए जो अलग अलग सेंटेंस के रूप में यहाँ पर हैं. एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ. सी सिंग्स अ सॉन्ग. सी सिंग्स अ सॉन्ग. ये देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और एस यहाँ पे ऐड हुआ है. ऊपर आई प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस या एस ऐड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एस या एस ऐड हुआ है. ये देखिए, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. सी सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ड डज नॉट लग गया. सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. इसका इंट्रोगेटिव हो गया, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग. डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग. और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, वाई डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग. वाई डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग. तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का पूरा फॉर्मेट. आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आया हो. इसमें
असर्टिव से लेके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के पूरे पार्ट्स को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, कैसे किसमें कौन चेंज हो रहा है। वेरी इजीली यू कैन आल्सो कन्वर्ट द सेंटेंसेस from interrogative to negative, negative to interrogative, assertive to negative, negative to assertive. It can be done very easily. Now the second is simple past. You see, simple past. Simple past tense expresses an action that has already been completed in the past. जो सिंपल पास्ट टेंस होता है भी एक ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करता है जो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है, जो पास्ट में कंप्लीट होते हुए दिखाई दे, उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है ना। Certain words are groups of words indicating past time, such as yesterday, a week ago, 4 months ago, yesterday, a week ago, 4 months ago. These all are usually added to sentences describing past action. For example, it snowed yesterday. It snowed yesterday. कल बर्फ़ गिरी थी या कल बर्फबारी हुआ। She baked a cake last week. She baked a cake last week. यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहे हैं। सीमा रोट अ लेटर, यहाँ पे राइट का सेकेंड फॉर्म रूट है। असर्टिव सेंटेंस से जब आप आएंगे यहाँ पर, तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है सीमा, सब्जेक्ट, रोट, यहाँ पर वर्ब सेकेंड हो गया, सीमा रोट अ लेटर। जब इसके निगेटिव की आप बात करेंगे, देखिए निगेटिव इसका, तो इसमें डिड नॉट का यूज होता है। सिंपल पास्ट में डिड नॉट यूज होता है। जैसे डिड नॉट यूज होगा, डिड ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म है, वैसे ही आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट है, सीमा डिड नॉट, यहाँ रोट है, राइट होगा, सीमा डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके। जब इसके इंट्रोगेटिव पर आप आएंगे तो देखिए ध्यान से, डिड सीमा राइट अ लेटर, डिड सबसे पहले आ जाएगा, सीमा उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड सीमा राइट अ लेटर। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं तो देखिए क्या हो गया, वाई डिड सीमा नॉट राइट अ लेटर। तो ऐसे स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया एग्जाम्पल सिंपल पास्ट का। आप इसको अच्छे से एक बार और रीड करेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक, हियर इज अनदर एग्जाम्पल। चिल्ड्रेन प्लेड अ मैच, चिल्ड्रेन प्लेड अ मैच इन द फील्ड। ये भी देखिए असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन प्लेड अ मैच इन द। इसको जब हम निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने जाते हैं, देखिए हो जाएगा चिल्ड्रेन डिड नॉट और प्लेड का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगा, डिड नॉट प्ले अ मैच इन द फील्ड, ऐसे हो जाएगा। जब उसके इंट्रोगेटिव बात हम करेंगे तो डिड चिल्ड्रेन हो जाएगा, डिड चिल्ड्रेन प्ले अ मैच इन द फील्ड। इंट्रोगेटिव निगेटिव जब बात करेंगे आप हो जाएगा, वाई डिड चिल्ड्रेन नॉट प्ले अ मैच इन द फील्ड। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप बहुत ही आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं सिंपल टेंस के। ये जो भी आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इस एग्जांपल्स के ही बेस पर यू कैन राइट मोर एग्जांपल्स, यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन टू अनदर sentences. That is very easy, there is no difficulty, and I hope you will do it at your home as your homework, so that you could clear the concept of this chapter. Okay students, now you okay,
तो you can write many example in the book. There are example, my mother always wore a sari. My mother always wore a sari. इसका निगेटिव लिख सकते हैं आप, my mother did not wear a sari. My mother did not always wear a sari. I attended yoga classes regularly. आप इसलिए देंगे I did not attend yoga class regularly. तो इस तरह से हम सेंटेंस को इस पास्ट सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं ओके स्टूडेंट्स। इसको आप अच्छे से करेंगे। रेस्ट आप द थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय।